Hello students, this is Swati. Welcome to Magnet Brains. I'm your English educator, and in this video we are going to start with the fourth chapter of our English channel Literature Reader book, and the name of the chapter is A Merry Christmas. Actually A Merry Christmas जो है ये एक singular chapter है from the novel Little Women, and Little Women is what should I say, it's a novel that will teach you a lot about life, and उसमें से हमने एक छोटा सा एक extract लिया हुआ है, and this has been written by Louisa May Alcott. If you guys are into reading, then I would recommend कि आप लोग ये Little Women जो novel है इसको ज़रूर पढ़ें, especially all the girls out there, because this is definitely going to have a great impact on your life. Now we are going to start by knowing our author. Louisa May Alcott was an American novelist. Her books Little Women, Good Vibes, Little Men and Joe's Boys are very popular all over the world. ये जो बुक्स हैं ये इतनी पॉपुलर हैं, इनका जो है अडेप्टेशन हुआ है इनटू मूवीज़, इनटू सीरीज़. अगर आप इसको देखोगे तो लिटिल वुमेन पे मूवी भी बनी हुई है, एंड आई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एमा वॉटसन वाज देयर इन दैट मूवी. सो this is going to be very interesting. So let's begin with our chapter now. Joe was the first to wake in the grey dawn of Christmas morning. No stockings hung at the fireplace. For a moment she felt disappointed. Now here we are talking about, let me give you एक छोटा सा snapshot about the background basically. Background ये है कि there are these four sisters. We have Joe, Meg, and there are two more names that will come across. So we have got four sisters. इनको मार्च सिस्टर्स कहा जाता है, इनका सरनेम मार्च है. इनकी जो मॉम है शी इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लेडी, शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव लेडी, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है उनका. इनके जो फादर हैं वो अभी वॉर फ्रंट पे हैं. So they are living together. They are not very poor, they are not like extremely hand to mouth की condition नहीं है, but still they have less. So यहाँ पे like I'm giving you the background कि उन लोगों के पास अभी क्रिसमस आ रहा है, they want to give each other gifts, but उनकी मॉम बोलती है कि वॉर टाइम्स पे हमको ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए. तो वो लोग सोचते हैं, उन सब के पास थोड़े थोड़े पैसे हैं, वो सोचते हैं कि वो अपने लिए कुछ ले लेंगे, बट लेटर दे डिसाइड कि नहीं, हम अपने लिए नहीं लेते, हम अपनी मम्मा के लिए कुछ लेते हैं. सो दिस इज़ द बैकग्राउंड. अब यहाँ पे एक और बात होती है कि उनकी मॉम बोलती है कि यू वांट समथिंग एज ए गिफ्ट, आई वुड गिव यू गाइड बुक्स, जिसमें उन्होंने खुद इंस्क्रिप्शंस किए हुए हैं. गाइड बुक्स मतलब जो बुक्स में आपको बहुत नॉलेजेबल चीज़ें मिलती हैं, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, जो आपकी लाइफ में एक गहरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, तो ये गाइड बुक्स होती हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिसमस मॉर्निंग. ओके, Joe was the first to wake in the grey dawn of Christmas morning. So Joe is the first girl who woke up. No stockings hung at the fireplace. अब जो fireplace होता है, you know कि क्रिसमस में होता है कि आपके पास stockings होते हैं, उसमें gifts होते हैं, लेकिन आज कोई stockings नहीं थे. So for the moment she felt disappointed. थोड़ी देर के लिए उसको दुख हुआ. Then she remembered her mother's promise and slipping her hand under her pillow, drew out a little crimson colored book. लेकिन उसके बाद उसको मम्मा का प्रॉमिस याद आया that she is going to give them a Christmas gift in the form of guide books. तो यहाँ पे जैसे ही उसको अपनी मम्मा का प्रॉमिस याद आया, she slipped her hand under the pillows. तो उसके जो पिलो है, उस पिलो के नीचे जैसे ही उसने अपना हाथ रखा, so she found a small notebook which was crimson color. Crimson का मतलब होता है सुर्ख लाल. She knew it very well, for it was that beautiful old story. So उसको पता था ये वही बुक है क्योंकि उसमें एक बहुत ही beautiful old story थी. She woke Meg with a Merry Christmas and made her see what was under her pillow. So जो थी उसने Meg को उठाया और Meg को बोला अपने पिलो के अंदर देखो उसमें कौन सी बुक निकली है, कौन सी कलर की बुक निकली है. A green colored book appeared with a few words written by their mother. उसमें एक ग्रीन कलर की बुक निकली उसके पिलो के अंदर से, जिसमें उसकी मम्मा ने कुछ लिखा था. Which made their one present very precious for them. और इसलिए क्योंकि उनकी मम्मा ने खुद कुछ लिखा था उसमें, उनका ये एकमात्र जो गिफ्ट था इस क्रिसमस का, ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हो गया.
Presently, Beth and Amy walk to rummage and find their little books also, one dove colored, the other blue. So now here we are going to make this A as capital Y because this is the name of a person, it's a proper noun, it has to be written in capital letter. So Beth और Amy जो बाकी की जो दो sisters हैं उन्होंने भी क्या किया, rummage का मतलब होता है ऐसे ऐसे ढूंढना, जैसे अगर अपन लोग अपने बैग में कुछ रखा है तो अपन जो उसको अपन वी रमेज का मतलब क्या होता है, अनसिस्टमैटिक सर्च. तो शी रमेज्ड एंड शी फाउंड हर नोटबुक. सिमिलरली बेथ फाउंड हर नोटबुक एंड ये जो लिटिल बुक्स थी एक डव शेड की थी विच इज लेट्स से वाइट और एक जो थी ब्लू कलर की थी. They sat looking at and talking about their books. अब वो सब बैठ गए और अपनी बुक्स के बारे में बात करने लग गए. While the east grew rosy with the sunrise. Now when they woke up, now they are saying that जब वो लोग बातें करने लग गए तो अब सन जो सूरज है वो चढ़ रहा था. तो the east, entire east grew with sunrise. It became rosy with sunrise. Girls, said Meg seriously, looking from the tumbled head beside her to the two little night-capped ones on the other side of the room. So now Meg ने बहुत seriously बोला girls, and whom is she looking at? She is looking at the tumbled head beside her. Tumbled मतलब जो ऐसे करके वो लोग पढ़ रहे हैं, dropped हैं. So dropped head है मतलब जो उसकी sisters के बारे में बात करी कि उसने अपनी sisters को देखते हुए क्या कहा, Mother wants us to read and love and mind these books. हमारी मॉम चाहती हैं कि हम जो है इन बुक्स को अच्छे से रीड करें, इन्हें समझें और बहुत माइंडफुल तरीके से इसके अंदर जो भी लिखा है उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करें. एंड वी मस्ट बिगिन एट वंस, और हमें इस चीज़ में देरी नहीं करनी चाहिए. You can do as you please, but I shall keep my book on the table here and read a little every morning as soon as I wake. उसने बोला तुम्हारा जैसा मन हो तुम कर सकते हो, but मैं अपनी बुक को यहाँ जो साइड टेबल है उस पर रखूँगी और every morning when I get up, the first thing I'm going to do is I'm going to read a little from this book. For I know it will do me good and help me through the day. क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं रोज़ जब इस बुक को पढ़ूंगी तो अच्छी बातें लिखी हैं इसमें, तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा एंड पूरा दिन जो है मेरा बहुत अच्छा जाएगा. Now this shows that Meg is very responsible. This shows that वो जो है काफ़ी mature है, काफ़ी responsible है. Then she opened her new book and began to read. और उसके बाद उसने अपनी नई बुक को ओपन किया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया. जो put her arm round her and leaning cheek to cheek read also with a quiet expression so seldom seen on her restless face. So जो थी वो उसके बगल में ही बैठी थी, तो उसने अपना आर्म उसके ऊपर डाला, मतलब उसके ऐसे कंधे पे हाथ रखा और cheek to cheek. So if you can see here, so cheek to cheek मतलब वो चिपक के उसके साथ जो है उस बुक को पढ़ने लग गई with a quiet expression so seldom seen on her restless face. So यहाँ वो जो ऑथर है वो हमें बताना चाहती है कि जो है वो हमेशा बहुत रेस्टलेस रहती है, मतलब वो बहुत चुलबुली सी है और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है चीज़ों को लेके, लेकिन नाउ दैट शी इज़ रीडिंग द बुक शी इज़ वेरी काम एंड composed and she is reading the book very seriously. How good Meg is! Come Amy, let's do as they do, whispered Beth. So Beth ने कहा वाओ मैग कितनी अच्छी है, चलो एमी हम भी उस तरीके से बुक पढ़ते हैं जैसे वो लोग पढ़ते हैं. इससे हमें क्या पता चलता है, बेथ जो है वो बहुत इनोसेंट है और शी इज़ वेरी नाइव एज वेल. आई एम ग्लैड माइन इज़ ब्लू सेड एमी. एमी ने क्या बोला, ओ आई एम सो ग्लैड मेरा तो ब्लू कलर का है, विच मीन्स शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लुक्स ऑफ सर्टेन थिंग्स. And then the rooms were very still while the pages were softly turned. अब जो चारों बच्चे थे वो चुपचाप वो बुक्स को पढ़ रहे थे. Room was silent और सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, पेजेस के पलटने की आवाज़ आ रही थी. And the winter sunshine crept in to touch the bright heads and serious faces with a Christmas greeting. एंड द विंटर सनशाइन क्रेप्ट इन, यहाँ पे विंटर सनशाइन को पर्सोनिफाई किया गया है. यहाँ बताया गया है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई है, कोई पर्सन है जो धीरे धीरे रूम में आ गया और उन लोगों के ब्राइट मतलब उनके जो फेसेस है उस पे छा गया एंड उनको क्रिसमस के लिए ग्रीट कर रहे हैं. हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सनलाइट, कि किस तरीके से जो लाइट है अब उनके फेसेस पे पड़ रही है, एज इफ इट्स ग्रीटिंग देम मैरी क्रिसमस. Where is mother? asked Meg as she and Joe ran down to thank her for their gift. So once they were done with their reading,
जो ने बोला अरे मम्मा कहाँ है, और वो लोग दौड़ते हुए नीचे आए उनको थैंक यू बोलने के लिए फॉर द वंडरफुल गिफ्ट. Goodness only knows. Some poor creature came a begging, and your ma went straight off to see what was needed, replied Hannah, who had lived with the family since Meg was born and was considered by them all more as a friend than a servant. So अब वहाँ पे basically उनकी एक servant थी, Hannah. तो जैसे ही उन्होंने पूछा मम्मा कहाँ है, तो उन्होंने बोला पता नहीं, भगवान जाने वहाँ कहाँ गई है. कोई आया था बेग करते हुए, मतलब रिक्वेस्ट करते हुए, हेल्प मांगते हुए. तो जैसे ही उन्होंने मांगा तुम्हारी माँ चली गई उनके साथ. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हु, वी आर टॉकिंग अबाउट हैना, जो वहाँ पे सर्वेंट है, लेकिन वो वहाँ कब से है, जब से मैग बॉर्न हुई है. एंड एक तरीके से वो एक फैमिली का पार्ट हो चुकी है. She will be back soon, I think, so fry your cakes and have everything ready, said Meg, looking over the presents which were collected in a basket and kept under the sofa. तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा मम्मा ना बहुत जल्दी वापस आ जाएगी, सो फ्राई योर केक्स एंड हैव एवरीथिंग रेडी, मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ प्रिपेयर कर लो. लुकिंग ओवर द प्रेजेंट्स एंड देन व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब ने मम्मा के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए थे वो लोग. तो उन्होंने बोला ये सारे गिफ्ट्स जो है इस बास्केट में रख दो और बास्केट को सोफे के नीचे छुपा दो. वाई, बिकॉज दे वॉन्टेड टू सरप्राइज हर. Why? Where is Amy's bottle of cologne? She added. So उसके बाद उन्होंने बोला अरे इन प्रेजेंट में एक मिसिंग है. एमी जो ममा के लिए कुलोन लाई थी, मतलब एक तरीके से परफ्यूम लाई थी, वो कहाँ गया. She took it out a minute ago and went off with it to put a ribbon on it or some such notion, replied Joe. उसने बोला वो अभी बस 1 मिनट पहले ही उसने यहाँ से वो बॉटल निकाला था एंड वो लेके चले गई. आई थिंक वो उसके ऊपर रिबन लगाने वाली है, उसको डेकोरेट करने के लिए, या सम सच नोशन मतलब आइडिया. तो ऐसे ही कोई आइडिया उसके दिमाग में आया होगा, तो वो अभी लेके गई है. How nice my handkerchiefs look, don't they? Hannah washed and ironed them for me, and I marked them all myself. तो अब यहाँ पे बेथ, हु इज़ वेरी इनोसेंट एंड चाइल्डिश, उसने क्या कहा, देखो मेरे हैंडकरचीफ्स कितने अच्छे लग रहे हैं. हैना ने मेरी हेल्प करी, शी वॉश देम एंड शी आयर्न देम, और मैंने उन सबको खुद मार्क किया है, मतलब शी हैज़ रिटन समथिंग ऑन इट. लुकिंग प्राउडली एट द समवॉट अनइवन लेटर्स विच हैड कॉस्ट हर सच लेबर. तो उसने अपने हाथ से उस पर कुछ लिखा है, सो शी इज़ वेरी प्राउड. अनइवन लेटर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा है, अनइवन जैसे बच्चे लिखते हैं. So she has written that and she is very proud of herself because she has put in so many efforts just to please her mom. Bless the child. She is gone and put mother on them instead of March. How funny, cried Joe, taking one up. उसने बोला ओ भाई कितना अच्छा काम किया है. She has gone and put mother on them instead of March. तो उसमें जो है March की जगह उसको हटा के उसने उस पर mother लिखा है, मतलब वाह कितना बड़ा काम किया. तो Joe was like kind of teasing her. Isn't that right? I thought it was better to do it so because I don't want anyone to use these but mommy, said Beth, looking troubled. उसने बोला, बेथ जो थी वो काफ़ी ट्रबल्ड हो गई जैसे उसने उसको टीज किया. तो उसने बोला मैंने सही नहीं किया क्या. I changed it from March to mother. Why? Because I really wanted only mommy to use this. Now mommy is what? Nothing but mother. तो उसने बोला I wanted only mommy to use these handkerchiefs. That's why I have changed the name. It's all right, dear, and a very pretty idea. Quite sensible too, for no one can ever mistake now. It will please her very much, I know, said Meg with a frown for Joe and a smile for Beth. इसका मतलब क्या हुआ. तो अब जो ने उसे टीज किया था तो मैग ने उसको फ्राउन किया. फ्राउन मतलब ऐसे जो अपन अपने जो आईब्रोज होते हैं उसको ऐसे करते हैं ना गुस्सा दिखाने के लिए. और स्माइल फॉर बेथ, उन्होंने क्या बोला बेथ को, नो बेटा दिस इज़ अ वेरी प्रिटी आइडिया, इनफैक्ट वेरी थॉटफुल एंड शी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट प्लीज, मतलब वो बहुत खुश होगी इसको देख के. एंड देन शी जस्ट लुक्ड एट जो लाइक विद द फ्राउन कि अब इसके बाद ऐसे मत करना. Amy came in hastily and looked rather abashed when she saw her sisters all waiting for her. तभी तुरंत जो था एमी दौड़ते भागते अंदर आई and she looked rather abashed. तो उसको बहुत abashed का मतलब क्या होता है, ashamed, embarrassed. जब उसकी सारी sisters उसका वेट कर रही थी तो now she was like अरे यार इनको पता चल जाएगा या something like that. Where have you been and what are you hiding behind you?
अब यहाँ पे मैग ने पूछा तुम कहाँ थी और तुम अपने पीछे क्या छुपा रही हो? सरप्राइज टू सी बाय हर हुड एंड क्लोक दैट लेजी एमी हैड बीन आउट सो अर्ली। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि मैग शी नोज हर सिस्टर राइट। तो एमी जो है वो बहुत लेजी है, बट शी वॉज वेयरिंग हर हुड एंड क्लोक विच मीन्स शी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड शी आस्क्ड तुम थी कहाँ और इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? डोंट लाफ एट मी जो, I did not mean anyone should know till the time came. So अब जो उस पर हंस रही थी तो उसने बोला मेरे ऊपर हंसो मत, मैं नहीं चाहती थी किसी को भी पता चले जब तक टाइम नहीं आता. I only meant to change the little bottle for the big one. उसने क्या कहा, मैंने जो मम्मा के लिए छोटा सा क्लोन बॉटल लिया था, I only wanted to change it for the big and beautiful bottle. As she spoke, Amy showed the handsome flask which replaced the cheap one. और जैसे ही वो ये बात कर रही थी तो उसने अपने पीछे से निकाला एक ब्यूटीफुल सा फ्लास्क जो उसने वो जो चीप वाला पहले क्लोन बॉटल लिया था उसको रिप्लेस करके she bought. And looked so earnest and humble that Meg hugged her on the spot and Joe pronounced her a trump while Beth ran to the window and picked her finest rose to ornament the stately bottle. तो जैसे उन लोगों ने देखा उस बॉटल को, Meg was so emotional that my sister, she is so thoughtful that she hugged her. And जो ने क्या किया, जो ने उसको बोला वाओ दैट्स अ ट्रम्प. नाउ ट्रम्प का मतलब क्या होता है? अ हेल्पफुल और एडमायरेबल पर्सन. वाओ मतलब एक कोई ऐसा पर्सन जो बहुत हेल्पफुल है या जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो. और बेथ क्या किया, बेथ ने दौड़ के वो विंडो के पास गई. शी प्लग द मोस्ट ब्यूटिफुल रोज, उस चीज़ को, उस स्टेटली बॉटल. ना स्टेटली का मतलब क्या है? बहुत ही इम्प्रेसिव बॉटल है, बहुत अपेयरेंस वाइज, लुक वाइज वो बहुत ब्यूटीफुल थी. तो उसको उसने द मोस्ट ब्यूटीफुल रोज से डेकोरेट किया. यू सी, I felt ashamed of my present after reading and talking about being good this morning. उसने कहा कि आज जब हमने वो बुक्स पढ़ी तो उसमें लिखा था कि हमें अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए और हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए. उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे बुरा लगा and I really did not want to be selfish. So I ran round the corner and changed it the minute I was up. तो मैं भाग के गई और जहाँ से मैंने ख़रीदा था वहाँ जाके मैंने इसको चेंज कर दिया. Another bang of the street door sent the basket under the sofa and the girls to the table eager for breakfast. Another bang of the street door मतलब उनको फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई. जैसी आई तो उनको पता था उनकी मम्मा आ गई है, तो तुरंत उन्होंने सारे प्रेजेंट्स जो थे वो सोफ़ा के नीचे छुपा दिए और सब के सब डाइनिंग टेबल पे चले गए बिकॉज दे वर ऑल वेरी हंग्री फॉर द ब्रेकफास्ट. मेरी क्रिसमस मामी, थैंक यू फॉर द बुक्स. और जैसे उन्होंने अपनी मदर को देखा क्या कहा? थैंक यू सो मच फॉर द बुक्स एंड मैरी क्रिसमस. We read some and mean to every day. They all cried in chorus. तो उन सब ने एक साथ क्या बोला? हमने बुक्स को थोड़ा सा पढ़ा and we mean to read some every day. मतलब और हम रोज़ जो हैं हमने डिसाइड किया है every day we are going to read a small part of that book. Merry Christmas, little daughters. I am glad you began at once and hope you will keep on. तो उन्होंने क्या बोला? Merry Christmas मेरी प्यारी बच्चियों, और आई एम सो हैप्पी कि तुमने स्टार्ट भी कर दिया पढ़ना एंड आई रियली होप कि तुम ये हमेशा पढ़ते रहो. बट आई वॉन्ट टू से वन वर्ड बिफोर वी सिट डाउन. अब सब जो थे ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे, सबको काफ़ी भूख लगी थी, तो उन्होंने बोला लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बिफोर वी सिट डाउन फॉर द ब्रेकफास्ट. Not far away from here lies a poor woman with a little newborn baby. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं एक जो है बहुत ही पुअर मतलब बहुत ही गरीब सी एक वुमन है और जिनका अभी एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी भी हुआ है. 6 children are huddled into one bed to keep from freezing for they have no fire. उनके 6 बच्चे हैं, वो 6 के 6 बच्चे एक ही बेड पे एकदम पास में चिपक के जो है बैठे हुए हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, उनके पास फायर भी नहीं है कि वो अपने आप को वार्म कर सकें. There is nothing to eat over there and the oldest boy came to tell me they were suffering hunger and cold. उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है और जो उनका सबसे बड़ा बेटा था वो मेरे पास आया था ये बताने के लिए कि वो लोग सफ़र कर रहे हैं, मतलब उनके पास ना कुछ खाने के लिए है और उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. My girls, will you give them your breakfast as a Christmas present? उन्होंने क्या कहा कि मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम अपना क्रिसमस का ये जो ब्रेकफास्ट है ये तुम उनके साथ शेयर करना मतलब तुम उनको दोगी?
They were all unusually hungry and for a minute no one spoke. उन सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो for a minute कोई कुछ नहीं बोला. But only a minute, for Joe exclaimed impetuously, I am so glad you came before we began. और लेकिन तुरंत, मतलब 1 मिनट के लिए तो सब चुप हो गए क्योंकि सबको भूख लगी थी, वो सब भी तो बच्चे हैं. लेकिन अचानक से जो ने क्या बोला, बहुत ही इम्पीटियसली, मतलब क्विकली. व्हाट डिड शी से कि अरे अच्छा हुआ आप जो है हमारे नाश्ता स्टार्ट करने से पहले ही आ गए, आपने पहले ही बता दिया. May I go and help carry the things to the poor little children? asked Beth eagerly. और बेग ने बहुत प्यार से क्या बोला, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ये सब कुछ जो है कैरी करके उनके घर तक लेके जाने के लिए? I shall take the cream and the muffins, added Amy, heroically giving up the article she most liked. और एमी ने क्या बोला, एमी को सबसे ज़्यादा पसंद था क्रीम एंड मफिन्स, तो उसने क्या कहा कि मैं जो हूँ उनके लिए क्रीम्स और मफिन कैरी करूँगी, विच मीन्स शी वॉज ऑल्सो रेडी टू शेयर हर पार्ट. Meg was already covering the buckwheat and piling the bread into one big plate. और Meg ने कुछ नहीं कहा, वो तो already जो stuff है उसको फटाफट पैक करने लग गई थी. What did she pack? Buckwheat and piling the bread. Buckwheat is like a cereal, जैसे हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, मुस्ली खाते हैं, वैसे ही buckwheat जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस सीरियल होता है. तो buckwheat को और ब्रेड को वो फटाफट पैक करने लग गई. उसकी मम्मा ने क्या कहा, उन लोगों की मम्मा ने, I thought you would do it. मतलब मुझे पता था तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगी. Smiling as if satisfied. She was so content कि उनकी बच्चियाँ कितनी अच्छी हैं. You shall all go and help me, and when we come back, we will have bread and milk for breakfast and make it up at dinner time. तो उन्होंने क्या कहा, हम सब चलते हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं, और जब हम वहाँ से वापस आ जाएंगे तो हम फटाफट जो है ब्रेड एंड मिल्क खा लेंगे, एंड डिनर टाइम तक हमारा सब कुछ ओवर हो जाएगा. They were soon ready and the procession set out. सब तैयार हो गए, एंड प्रोसेशन मतलब a lot of people will walk together ना, तो उसको बोलते हैं प्रोसेशन. तो उनका प्रोसेशन बाहर निकला. Fortunately it was early and they went through the back streets, so few people saw them. अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली सुबह का टाइम था और वो लोग पीछे के रास्ते से गए थे, तो बहुत कम लोगों ने देखा, वरना लोगों को क्या लगता, खुद के पास तो है नहीं ज़्यादा और वो दूसरों की हेल्प करने जा रहे हैं. A poor, bare, miserable room it was. Finally वो उस poor woman के घर पहुंच गए. अब वो woman के घर को describe कर रहा है कि वो जो घर था, वो जो रूम था, it was a poor, मतलब बहुत गरीब सा था, खाली था, उसमें कुछ फर्नीचर नहीं था. It was a miserable room with broken window, no fire, ragged bedclothes, a sick mother, wailing baby, and a group of pale, hungry children huddled under one old quilt trying to keep warm. Now this entire paragraph shows कि वो कितनी मिजरेबल कंडीशन में थे. मतलब उनकी जो विंडो थी वो ब्रोकन थी. नाउ इमेजिन इट वाज क्रिसमस, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पीक विंटर्स. उनके पास फायर नहीं है, ब्रोकन विंडो है जिससे पूरी हवा अंदर आ रही है. नो फायर, रेग्ड बेड क्लोथ्स, मतलब एकदम फटे फटे जो होते हैं ना, वैसे बेड क्लोथ्स थे. वी आर टॉकिंग अबाउट द बेड शीट्स एंड द क्विल्ट. उनकी मम्मा की तबीयत ख़राब थी. अ सिक मदर, अ वेलिंग बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी था वो रो रहा था. वेलिंग मतलब क्राइंग बेबी. एंड अ ग्रुप ऑफ पेल हंग्री चिल्ड्रन. और उसके अलावा जो उनके 5 बच्चे थे वो सब जो थे, दे वर हंग्री, दे वर पेल बिकॉज ऑफ कोल्ड, एंड दे वर ऑल हडल्ड अप, मतलब क्लोजली दे वर लाइक क्लिंग्ड टू ईच अदर, ताकि उनको ठंड कम लगे. अंडर वन ओल्ड क्विल्ट, और उन सब के पास क्या था, सिर्फ एक पुराना सा क्विल्ट था. Trying to keep warm. How the big eyes stared and the blue lips smiled as the girls went in. और जैसे ही ये सारे जो लोग हैं, ममा और ये जो 4 मार्च सिस्टर्स हैं, जैसे ही वो लोग अंदर गए, सबकी जो आँखें थी उनमें ब्राइटनेस आ गई, एंड सबके ब्लू लिप्स. ना वाई आर दे कॉलिंग इट ब्लू लिप्स? दे आर सेइंग ब्लू लिप्स बिकॉज जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा, तो आपके जो होंठ होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं. सो दे ब्लू लिप्स स्माइल्ड एज द गर्ल्स वेंट इन. आह माय गॉड, इट इज़ गुड एंजल्स कम टू अस. अब ये जो है, ये एक जर्मन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि हमारे घर में एंजल्स आई हैं. सेड द पुअर वुमन क्राइंग फॉर जॉय. नाउ एज दीज
little kids and their mom, they went inside with breakfast, जो भी उन्होंने अपने लिए prepare किया था. The poor woman, why? Because she could not see her kids dying of hunger, right, starving, and she was so sick she was not able to help them. So when she saw कि ये सारी जो बच्चियां हैं अपनी मॉम के साथ आई हैं, उनके लिए वो एंजल से कम तो थी नहीं. So she had tears in her eyes, but those tears were full of joy and happiness. And that is how we are done with this small extract from our book, The Little Woman. Little Woman, not the, it's only Little Woman. I hope you understood it. I hope you like the chapter. What do you understand? What did you learn from this chapter? We learned that I think the biggest joy is the joy of giving. आपके पास जितना भी है, जब आप उसको शेयर करते हो, आप उसको देते हो, सो यू फील रियली गुड. क्योंकि यू नो मे बी दे वुड हैव हैड मफिन्स, ज़्यादा खा लेते, अच्छा खा लेते, लेकिन जो जॉय उनको अब मिला है उस जॉय का कोई कंपैरिजन नहीं है. सो वी ऑल शुड लर्न जस्ट वन सिंपल थिंग, विच इज़ we are supposed to be together and we have to have this joy of giving inside us. That's it guys. Now we are going to start with the summary of this chapter. ताकि आपको क्या हो, अब जब आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो इतना पढ़ने की जगह आप सिर्फ समरी देखोगे और आपको सब एकदम समझ में आ जाएगा. क्लियर? So let's begin with the summary. On Christmas morning, the March girls get up to find guidebooks tucked under their pillows with an inscription in each from their mother. मतलब Christmas morning में जो आपकी March sisters हैं, उन सब ने अपने अपने पिलो के अंदर से guidebooks निकाली, जो कि उनके लिए एक Christmas gift था, उनकी ममा ने जो दिया था. Meg suggests that they honor their mother's gift of the books by studying them every morning. और Meg ने क्या suggest किया कि हम जो है अपनी ममा के इस गिफ्ट को respect करेंगे, honor करेंगे, रोज इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के. And they spend the next half hour reading. और उसके बाद वो आधे घंटे बुक्स को पढ़ने में बिता देते हैं. Inspired by what she read, Amy sneaks out and exchanges the small cheap bottle of cologne she bought for Mrs. March for a large one. Whatever she had read, Amy जो पढ़ती है उसको पढ़ के क्या होता है, उसको realize होता है that she should not be selfish, that she should have the joy of giving. तो वो क्या करती है, उसके पास जितने पैसे बचे होते हैं वो जाके उसने अपनी ममा के लिए गिफ्ट के तौर पे एक कोलोन की बॉटल ली थी, उसको एक्सचेंज करके वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा बड़ा वाला बॉटल लेके आती है. The girls hide their presents. So सब जो है ममा के लिए कुछ कुछ लाते हैं, तो सारी जो गर्ल्स होती है वो अपने प्रेजेंट्स को छुपा देती हैं. Mommy returns and asks the girls if they will send their Christmas breakfast to the nearby family of immigrants, where a single sick mother lives with 6 children without food or firewood. तो जब ममा वापस आती है, she was out somewhere, वो क्या कहती है कि यहीं पे पास में नियर बाय एक फैमिली है इमिग्रेंट्स की. इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, जो लोग किसी दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, और उनके पास क्या है, उनके पास सिर्फ एक छोटा सा घर है जहाँ उनकी जो मदर हैं वो बहुत बीमार हैं, और उनके जो 6 बच्चे हैं उनके पास ना खाना है ना फायरवुड है. Despite their hunger, the girls agree and they all walk over to the family's home. उनको भी भूख लग रही थी. Despite their hunger मतलब अपनी भूख को भूल के वो सब अग्री करते हैं कि हाँ हम अपना जो क्रिसमस का ब्रेकफास्ट है वो हम उनको दे देंगे. They all walk over to the family's home. वो सब उस फैमिली के घर जाते हैं and spend the morning sharing their food and kindness. और अपना जो पूरी जो क्रिसमस की मॉर्निंग होती है वो कैसे बिताते हैं, sharing the food and kindness. Simple summary, understood क्या हुआ इस पूरे चैप्टर में? Great. Now guys, that's it for this particular video. I hope you understood the chapter well. In our next video, we are going to start with the question answers. If you have any doubts, please write it in the comment box and do not forget to like, share and subscribe. Why? Because if you will like it, I'll know about it and I'll be happy. If you will share it, your friends will be benefited, and if you will subscribe, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको फटाक से पता चल जाएगा. क्लियर? ऑल्सो रिमेंबर, अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है कि वीडियोस को फाइंड करने में, इट इज़ वेरी इजी. यू कैन गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com. एक्सक्यूज मी. वहाँ पे आप कोर्सेज में जाओगे, क्लिक ऑन क्लास 7. जैसे ही आप क्लास 7 में क्लिक करोगे सारे सब्जेक्ट्स अपीयर होंगे. Just click on English and then the topic that you wish to study and your video will appear. That's it. Thank you so much. I'll see you soon. Take care of yourselves. Bye bye.